مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ وہ داڑا تھا۔ ایسا کیا ہے اس میں جو آپ مرے جا رہے ہیں؟ ملک صاحب وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا، جو ایک کے بعد ایک الکوہل کا گلاس حلق میں ڈیل رہا تھا۔ تم جانتے ہو ایم جے، جب وہ چھوٹی تھی، محض 4 سال کی، وہ بے انتہا شاہ خوبصورت تھی۔ اس کی گری آنکھیں وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ مدہوش ہوتے ہوئے بول رہا تھا، اور اب جب وہ جوان ہو گئی تو مجھے یقین ہے وہ جوانی میں غضب ڈالتی ہوگی۔ وہ خباثت سے اس کی خوبصورتی کے تذکرے سامنے بیٹھے شخص سے کر رہا تھا۔ آپ سے کتنی چھوٹی ہے وہ ملک صاحب؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا، جو شادی شدہ مرد ہو کر بھی کسی لڑکی کے تذکرے کر رہا تھا۔ کم سے کم 25 سال۔ آہ، کاش وہ اس رات میرے ہاتھ لگ جاتی، پر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ بٹ وہ جو سمجھ رہا تھا اس سے کچھ سال چھوٹی ہوگی، مگر یہاں تو وہ شاید اس لڑکی کے باپ جتنی عمر رکھتا تھا۔ مجھے چاہیے وہ ہر حال میں، ڈھونڈو اسے۔ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ ایم جے اس پر ایک نظر ڈالتے باہر نکلا۔ لڑکیوں سے بے نیاز ہاتھ میں شیشے کا وائن سے بھرا گلاس لے کر وہ سامنے بیٹھے شخص کو غور کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ذرا دور کچھ بےہودہ حرکتوں میں سریعان موجود تھا۔ ہائے بیبی، اس نے اس کا دھیان باہوں کا ہار بناتے اپنی طرف کروایا تھا۔ توجہ ہٹانے سے ایک ناگوار تاثر ابھرا تھا جسے وہ بروقت چھپا گیا تھا۔ کنٹرول یور سیلف لیڈی۔ دور رہو گی تو فائدے میں رہو گی، قریب آؤ گی تو عزت ہو جائے گی، جان بھی جائے گی۔ وہ اسے کھینچتے ایک پراسرار مسکراہٹ سے بول رہا تھا، تمہاری باہوں میں کون ظالم نہیں بننا چاہے گا؟ وہ اس کی برون جیکٹ کا کالر اپنے ہاتھوں میں لیے مٹھی میں جکڑے مسکرائی تھی۔ وہ گلاس پھینک کر ریلیکس دوبارہ سامنے والے شخص کو دیکھ رہا تھا، جب سیڑھیاں چڑھتے جھولتے مدہوشی میں اوپر جا رہا تھا۔ وہ اس کی باہوں کا ہار بنے تھی، جس سے اسے بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیوں نہ کہ اس کی توجہ کا مرکز تو سامنے موجود شخص تھا۔ سو مسٹر، کیسی رہی نائٹ؟ مقابل میں ایک سخت گھوری سے سپٹایا۔ میرا مطلب تھا کچھ پتہ چلا؟ وہ فوری مدعے پر آیا۔ لیو دس ٹاپک، مجھے بھی بات نہیں کرنی۔ مراد نے مزید نہیں پوچھا۔ وہ شخص اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اپنی باتیں تو وہ شاید خود سے بھی شیئر نہیں کرتا تھا۔ ڈیش بورڈ سے لائٹر نکالتے انابی لبوں کے درمیان سگریٹ سلگائی وہ پرسوچ خلا میں دھواں چھوڑ رہا تھا۔ انکل کی سیٹ کب سنبھال رہے ہو؟ مراد نے اسے دوبارہ پوچھا، جو فرنٹ سیٹ پر ریلیکس بیٹھا تھا۔ سوچا نہیں۔ دھواں گاڑی میں پھیل رہا تھا۔ مراد نے چڑھ کر ناگوار تاثر دیا اسموکنگ کی اسمیل سے۔ کیوں؟ تمہیں آ جانا چاہیے اب سیاست میں، مشورہ دیا تو تم آ جاؤ، وہ بات کاٹتے بولا۔ آتی بچی سگریٹ شیشے سے باہر پھینکتے کہا، کبھی سیدھا جواب نہ دینا۔ مراد کو غصہ آیا۔ چلو ٹائم کافی ہو گیا ہے، بولتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی، جیسے مزید وہ اس کی بکواس نہیں سننا چاہتا تھا۔ مراد کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ فل سپیڈ سے ڈرائیو کر رہا تھا کہ کچھ ہی منٹوں میں وہ ایک سفید پوش ایریے کے سب سے بڑے گھر کی حدود میں داخل ہوا۔ گیٹ کھولتے ہی گارڈ کو چابی دیتے وہ اندر بڑھا سا گارڈن عبور کرتے لانچ میں قدم رکھے۔ سوتے ہوئے کیوں محسوس ہوا جیسے حلق میں کانٹے چپ رہے ہیں۔ وہ قسمساتے نرم بستر سے اٹھی تھی، نیند میں ڈوبی گری آنکھیں جن کے ڈورے لال ہو رہے تھے۔ بمشکل سائڈ لیمپ آن کیا۔ پانی، شدید پیاس لگی تھی۔ سائڈ ٹیبل چیک کیا مگر جگ خالی تھا۔ بلیک سوفٹی پیروں میں پہنے گھڑی پر نظر ڈالی جو ایک سے کچھ اوپر کا ٹائم شو کر رہی تھی۔ بیڈ سے لاپرواہ دوپٹہ لیے وہ باہر بڑھی۔ رات کے اس پہر ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ لان سے ہوتے سیڑھیوں تک کا سفر وہ بھی طے کرتا اندھیرے میں کسی سے ٹکرایا۔ وہ اندھیرے میں بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ نازک وجود کس کا ہے۔ ایک دل فریب اور اسرار مسکراہٹ ہونٹوں سے چھوئی۔ وہ چیختی کہ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں سنجیدہ کالی آنکھوں سے ٹکرائی۔ ڈارلنگ، میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس کو خوف کی پرواہ کیے بغیر اس کے منہ پر ہاتھ جمائے ہی پوچھا۔ محض ہلکی سی پیلی روشنی میں اس کا شفاف چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی بے انتہا قربت اور مردانہ پرفیوم کی خوشبو سے ٹکراتے اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ بولو، اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے پوچھا، جبکہ اس کے ایک ہاتھ برون بالوں کو چھوتے ہوئے اشارہ تک آ چکا تھا۔ پانی پینے وہ اس کے ہاتھوں کی حرکت سے خوف زدہ تھی۔ بہت صبر آزماتی ہو تم۔ سو سویٹ ہارٹ، جلد کچھ کرنا پڑے گا، اس کے کان کلو پر جھکتے کہا۔ وہ جی چاند سے کانپی تھی، جو پورا کا پورا اس پر جھکا تھا۔ اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ وجدان پلیز، اپنے نازک ہاتھوں سے اسے دور کرتے وہ روحان سی ہوئی۔
जो इसकी जान लेने पर तुला था और पूरी तरह नींद से इसे बेदार कर चुका था। अलबत्ता वो हाथ भी अपनी गिरफ्त में ले चुका था। डिम्पल दिखाओ। हाँ, वो पूरा मुंह खोले हैरान हुई जो इसकी बाजू गिरफ्त में लेते कमर जकड़ चुका था। वजदान वो बेबस थी इसकी फरमाइशों और हरकतों से। ज़बरदस्ती वो मुस्कुराई वरना जानती थी कि डेट इंसान छोड़ेगा नहीं। जो पसंद है वो बोलते ही इसके दोनों गालों पर बारी बारी झुका था। वो कोस रही थी वो लम्हा जब वो नीचे आकर इस बला के हाथों में फंस गई थी। अभी वो कुछ और करता कि वो आंखें जोर से बंद कर चुकी थी। वजदान मुस्कुराया इसकी हालत पर। डार्लिंग, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करेंगे, गंभीर लहजे में कहते वो मजीद एक बार फिर इसके माथे पर झुका था। पुरहिद्दत लम्स छोड़ते चला गया। लम्स ने आंखें खोली तो अंधेरे में सिर्फ खुद को पाया, मगर यूं महसूस हुआ कि अभी भी इसके हसार में जकड़ी है। मेरी जान लेकर रहेगा ये शख्स, वो बोलते बगैर पानी पिए ऊपर रूम की तरफ खौफज़दा सी भागी थी। वो मुस्कुराहट के साथ अपने आलीशान रूम में दाखिल हुआ जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ थी। जहाजी साइड बेड पर गिरने के से अंदाज में बगैर चेंज किए औंधे मुँह लेट गया। शिद्दत इश्क ज़ेरे लब दोहराते होंठ हल्की सी मुस्कुराहट में डले थे। कुछ देर पहले का मंजर सोचते वो आंखें बंद कर चुका था। रात में तुम फिर लेट थे? सदफ ने बेटे से पूछा जो बेनियाजी से ब्लैक टी शर्ट में बैठा कॉफ़ी पीने के साथ अपने कीमती फ़ोन में बिजी था। मोबाइल से नज़र हटी। मॉम 11 बजे लेट होता है। लम्स पर नज़र डालते झूठ कहा जो वानिया के साथ बैठी थी और अपना कुछ पेपर वर्क कर रही थी, पर ध्यान इसकी गुफ्तगू पर था। लायर। सो 1 का टाइम था। रात का मंजर याद करते वो ब्लश हुई। वजदान बगैर इसके चेहरे के तासुर देख रहा था जिसका चेहरा मुख्तलिफ मंजर पेश कर रहा था। वो बाप की बात पर होश में आया। वजदान, कल मेरे साथ पार्टी के जलसे में जा रहे हो तुम? अहमद शाह ने बेटे से कहा। ये ज़बरदस्ती है डैड। वो बदमज़ा हुआ। सियासत के टॉपिक पर कुछ माँ के डर की फिक्र भी थी। इट्स माई ऑर्डर माई डियर सन, वो बीसी के लहजे में बोले। शायद मैं नहीं चाहती वजदान सियासत में जाए, सदफ ने खौफ से कहा। कम ऑन सदफ, मेरी सीट इसी को संभालनी है। बी ब्रेव। वो बच्चा नहीं है, पूरे 26 साल का नौजवान मर्द बन चुका है। मुझ में कुछ खोने की मजीद हिम्मत नहीं है शाह, वो दुख से बोली। लम्स इनकी बात पर रोने वाली हो चुकी थी। ममा प्लीज़। वो रोते सब कुछ वहीं छोड़ते फ़ौरन इनके पास आई। मेरी जान, वो इसे सीने से लगाते बोली। जो इनकी इकलौती बहन की निशानी थी। चंद साल पहले एक हादसे में दोनों मियाँ बीवी की मौत एक हादसे में वाक़या हो गई थी। जब इंसान हक पर ना हो सदफ तो खौफ नहीं खाते। शाह ने फिर से कहा। जो भी हो मुझ में नहीं हिम्मत शाह, वो रोते हुए बोली। भाई मामा को हैंडल करें आप प्लीज़। वानी वजदान के पास गई। जब तक आप एग्री नहीं मैं इस फील्ड में आने का सोचूंगा भी नहीं। वो सोफे पर साथ जगह बनाते बैठा और इसके आंसू साफ करते अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया। लम्स इनकी गोद में सर रखे रो रही थी, जिस पर फ़कत एक नज़र डालते वो तकलीफ में हुआ। जो इसकी मता जान, इसकी मनकूहा, इसका जुनून की हद तक इश्क थी। अपनी उदासी मुझे दे दो, मेरे हिस्से का तू मुस्कराया कर। अहमद शाह की शादी इनकी कज़न सदफ से हुई थी। अहमद शाह का एक बेटा वजदान, जो कि 3 साल पहले ग्रेजुएशन मुकम्मल करके अब एक कंपनी का बज़ाहिर बिजनेस देख रहा था। वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, पर बाप मजबूर कर रहा था। फिर वानिया, जो लम्स से 4 साल बड़ी थी, वो वजदान से 3 साल छोटी थी, जो भी BSc करके फ्री हुई थी। सदफ के रिश्ते में सिर्फ इनकी एक बहन ही थी और इनकी एक ही बेटी थी लम्स, हयात खान। पर एक हादसे में इन दोनों की मौत हो गई थी। लम्स के वालिद पठान थे जो काफ़ी खूबसूरत थे। लम्स ने डिम्पल और ग्रे आंखें अपने बाप से हुस्न में ली थी, जिनका वजदान शाह दीवाना था। वजदान शाह लम्स का निकाह पिछले साल जब वो 18 की हुई थी तो इसकी बर्थडे वाले दिन हुआ था। ये वजदान की ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी थी, पर लम्स वजदान से डरती थी। इसके मुताबिक वो इसके हर मामले में इस पर रोक डालता है, पर वो इस बात से शायद अनजान थी कि वो इसका शिद्दत वाला इश्क है। लम्स की माँ भी यही चाहती थी। सदफ तो इसे किसी सूरत में खुद से दूर किसी गैरों के हवाले नहीं करना चाहती थी। जो इनकी बहन की निशानी थी वो इसकी माँ नहीं थी, मगर माँ से बढ़कर इसे मोहब्बत करती थी। जब इनके अकलौते लाडले बेटे की बीवी और इनकी बहू भी थी। लम्स का एडमिशन इसी साल यूनिवर्सिटी में हुआ था। गाड़ी को गली की नुक्कड़ पर रोकते वो लोग करते उतरा था और चेहरा रुमाल से कवर किया हुआ था।
गली की हालत बस खराब सी ही है। 4 मल्ले के नॉर्मल से घर के दरवाजे के आगे जाकर दरवाज़ा नॉक किया। बेटा जी आप। वो बूढ़ा शख्स इसे देखकर खुश हुआ था। इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी? वो इसके हाथ में मौजूद ढेर सारा राशन, सारा सामान देखते हुए बोला। मेहरबानी इनकार नहीं कीजिएगा, बेटा समझते हैं। वो इनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। कैसे हैं आप? वो प्यार से अंदर जाते हुए मुखातिब हुआ था। कैसा हो सकता हूँ बेटा? खुद पर काबू पाते हुए बोले थे। अरे बेटा तुम वो इस शख्स की बीवी भी शायद इसे देखकर खुश हुई थी। जा मनज़्ज़ा भाभी के लिए चाय पानी लाओ। अरे नहीं आंटी इसकी ज़रूरत नहीं, वो नफ़ी करते बोला। तब तक कोई छोटी लड़की पानी का गिलास ला चुकी थी। शुक्रिया, वो मुस्कुराते इसके सर पर हाथ रखते बोला था। वो आखिरी सहारा थी हमारा, इस जालिम दरिंदे ने नोच लिया इसे, और अब हम अगर कानून की धमकी दें तो वो हमें मनज़्ज़ा की धमकी देकर गया है, और इसका हाल भी वही करेगा जो हम गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। ये हुकूमत और कानून ये भी तो अमीरों के लिए ही है, हम तो बस जालिमों की चक्की में पिसते हैं। वो रोते हुए बोल रही थी। वहाँ से निकलते एक अज़म से निकला था। ब्राउन आंखें चमकी थी, होंठों पर एक कातलाना जहर मुस्कुराहट थी। मुलाजमा ने सारा नाश्ता टेबल पर सेट कर दिया था। वो सब खाने में मसरूफ़ थे। सिर्फ वजदान नहीं था। टेबल पर लम्स को लग रहा था फिज़ा में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। वो खुलकर सांस ले सकती थी। ठीक से नाश्ता करो और फिर ये दूध भी फिनिश करो। मामा लम्स की जान पर बनी थी। नो आर्ग्यू, वो आंखें दिखाते बोली। डैड मैं मोटी हो रही हूँ, प्लीज़ समझाएं मामा को। अहमद को घसीटता था अपने दफा में। बिल्कुल कमज़ोर सी हो, इस मामले में मुझे नहीं इन्वॉल्व करो। वो नैपकिन से हाथ साफ करते मुस्कुराते उठे। वो मुंह बसोरती रही। वानी हंस रही थी। दूसरे से हमेशा से चिढ़ती। जल्दी सदफ ने इसकी तरफ बढ़ाया। यूनी के लिए तैयार होकर वो नीचे आई। तुम ऐसे जा रही हो? वानी ने तनकीदी जायजा लिया क्योंकि वो 2 मिनट बाद वो इन्हीं कदमों पर वापस आने वाली थी। इतना वानिया जानती थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं मेरे बेबी, वो मुस्कुराती नजरों से बोली थी। ओके देन आई एम लेट बाय। वो भागी थी बैग कंधे पर डाले पोर्च की तरफ। ये क्या था? वो शशंद रह गई। ड्राइवर की जगह से गाड़ी के पास देखकर वो तो था नहीं, फिर ये कब और कहाँ से आया? बल्कि वो नाज़िल हुआ था। ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट के बाजू फोल्ड किए, माथे पर बिखरे बेतरतीब बालों में गाड़ी से टेक लगाए, शायद इसी का इंतजार कर रहा था। कदमों की चाप से सामने देखते इसका जायजा लिया। ब्लैक जीन्स पर डार्क ग्रीन शर्ट घुटनों से काफी ऊपर थी, आधी आस्तीन जिसमें से सफेद बेदाग बाजू छलक रहे थे। मेकअप में बस पिंक लिप बाम का इस्तेमाल, बालों के रफ से बन में थी। वो करीब बढ़ रहा था, जो मुंह खोले बस 2 कदम के फासले पर थी। चेंज करो, खुद पर काबू पाते इसके गले में मौजूद मफरल की गिरा खोली। अब क्या खराबी है इसमें? लम्स ने खुद को देखकर गुस्से से सोचा। इसका स्टॉलर खोलते इसके कंधों पर फैला रहा था। मैं लेट हूँ प्लीज, वो खौफज़दा सी इसकी चंगारती आवाज़ से यही कह पाई थी। क्या ख्याल है फिर आज का दिन यूनिवर्सिटी की बजाय हम हमारे रूम में ना स्पेंड करें? इसे खींच के गाड़ी के साथ लगाते सर्द लहजे में कहा था। वो धमकियों से खौफज़दा कर देता था। गर्म सांसें कान से होती गर्दन पर महसूस हुई थी। लम्स की पूरी आंखें खुल गई। इस शख्स का क्या भरोसा था? अपनी बात वो बगैर इसकी मर्जी की आसानी से पूरी कर लेता था। नहीं नहीं वजदान, अब इतनी भी नहीं लेट, मैं चेंज करती हूँ। इससे पहले कि वो कोई और सजा देता, इसे दूर करते पोर्च से भागी। ओ मेरा बेबी वापस आ गया, वानी ने हंसते हुए कहा। शायद लॉन्ज में इसी का इंतजार कर रही थी। आप वानी आपी, आपको आकर बताऊंगी। वो लेट थी, लिहाजा गुस्से से बोलते रूम में चली गई। रूम में एंटर हुई तो सामने बेड पर इसका ड्रेस पहले से पड़ा था। ये मेरी कब्र तक कब पहुंचा? मैनर्स की तो मेरे शोहर में एक भी कोई चीज़ नहीं। वो जीभ भरकर शर्मिंदा हुई थी। अब ये तय करेंगे कि मैं पहनूंगी क्या। वो कुड़ रही थी इसकी सिलेक्ट की हुई ड्रेस पर। ग्रे कलर पर रेड लाइट सी कढ़ाई वाली शर्ट और कैप्री लेते वो चेंज करने को बढ़ी। चेंज करते वो बाहर बढ़ी थी। वजदान गाड़ी में सनग्लासेस लगाए इसका वेट में था। इसे देखकर एक दिलकश स्माइल दी थी, जो फ्रंट सीट पर बैठते दुपट्टे से उलझ रही थी। शीशा ऊपर चढ़ाते जिससे बाहर से कुछ नजर न आए। यूनी की पार्किंग एरिया में रुकते से बगौर देखा, जो परेशान थी। ये नहीं हो रहा वजदान, दुपट्टा बहुत बड़ा है। मैं स्टॉलर लेती हूँ, वो झंझलाई थी।